नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस को कुछ खटक रहा है? ये सवाल अक्सर उठते रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि राजस्थान में बेहद करीबी मुकाबला नजर आ सकता है। हालांकि राहुल ने कुल मिलाकर आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने पर यकीन जताया है। राहुल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीत रही है। संभवतः हम तेलंगाना में भी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन राजस्थान में क्लोज फाइट दिखी जा सकती है। बता दें कि कुछ ही महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का किसी भी राज्य में नहीं जीतने का सवाल ही नहीं है। मैं कहूंगा कि अभी हम संभवतः तेलंगाना जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है और हमें लगता है कि हम जीत दर्ज करेंगे। वैसे बीजेपी भी अंदर खाने में यही कह रही है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण सीख ली है कि बीजेपी ध्यान भटकाकर चुनाव जीतती है और इसलिए हमने अपनी बात प्रमुखता से रखकर चुनाव लड़ा। आप आज क्यों देख रहे हैं बिधूड़ी और फिर निशांत दुबे? बीजेपी ये सब करके जाति जनगणना के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वे जानते हैं कि जाति जनगणना एक बुनियादी चीज है जिस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। जब हम ये मुद्दा लाते हैं तो वे हमारा ध्यान भटकाते हैं, लेकिन अब हम सीख गए हैं कि इससे कैसे निपटना है। Of them? No, Or the question of us not winning any of them is not going to happen. I'll tell you, there's no question. There's no way we're not going to win any of them. Okay. I would say, right now, Right. we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. We learned a very important lesson in Karnataka. Okay. And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not define the narrative. What you're seeing today, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. Sir, if you're Let me finish. We've learned how to deal with it. So what did we do in Karnataka? We gave a clear vision for the state. This is the social security program that we're going to set up for you. And then we control the narrative. If you look at the Telangana election, we are controlling the narrative. The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over in Telangana. If you look at the narrative in Madhya Pradesh, we are controlling the narrative. If you look at the narrative in Chhattisgarh, we are controlling the narrative. No matter what the BJP tries to do, they are not capturing the narrative anymore. So we are also adapting and learning, right? If you go and speak to the people of Rajasthan and you say, listen, what is the key issue in terms of anti-incumbency in Rajasthan? And you can go and do this. They'll tell you, actually, we like the government. We like what they've done on healthcare. We're very comfortable with the type of stuff they're doing, 500 rupee gas cylinder, the farm loan waiver, we are very comfortable with it. So we are adapting. In a situation where the BJP controls the media, we are adapting and controlling the narrative. So if you look at Bharat Jodo, we control the narrative.
And they put in thousands and thousands and thousands of crores to take away the narrative. They couldn't do it. Right? So don't think the opposition isn't capable of adapting. We are adapting. We're working together. We are 60% of India's population. BJP is in for a surprise in 2024. That's what my next question was. So, if you win 3 states, 4 states, I appreciate the confidence. My best wishes for you. So, if you win, if you silently go and ask the BJP people, you ask the BJP leadership in Rajasthan, right? Ask them what's going to happen in the election. They'll tell you. चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। इससे पहले आपने सुना राहुल गांधी का बयान, जिसमें वो साफ कहते नजर आए कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें 4 राज्य जो है वो जीत रही है कांग्रेस। सीधे तौर पर तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने जीत दर्ज करने का साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन राजस्थान में उनका यह साफ कहना रहा कि कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्लोज फाइट इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल सकती है। इस कॉन्फिडेंस को किस तरीके से नाम दिया जाएगा, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अमित तिवारी जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, कार्तिकेय सिंह जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले कार्तिकेय जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि राहुल गांधी का बयान सामने आया है और राजस्थान में एक बेहद करीबी मुकाबला कहते नजर आए राहुल गांधी। इस बेहद करीबी मामले को क्या समझा जाए, बीजेपी की सक्रियता या फिर कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी? और जो आपने बोला कि उन्होंने बोला है कि मुकाबला बेहद करीब है, ये नहीं बोला है। उन्होंने कहा है हम बहुत करीब है, हम जीत के बहुत करीब है। उदाहरण के तौर पर जब आप, मैं मानता हूँ क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट मैच में जब भारत की जीत होने वाली होती है, अमूमन जो कमेंटेटर होते हैं, दर्शक होते हैं, लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भारत जीत के बहुत करीब है, जीतने वाला है भारत। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला हुआ है कि राजस्थान में हम बहुत करीब हैं और हम जीतने में सक्षम होंगे। तो हमें ये समझने की जरूरत है। और उसके आधार पे कहा है, वो इस आधार पे कहा है कि एक तरफ जहाँ 5 साल सरकारें रहती हैं और लगातार एक राजस्थान में 1993 के बाद से आप देखिए क्रम चलाया है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस है। ये पहली बार ऐसा देखना को मिल रहा है कि अशोक गहलोत जी ने जो वहाँ पे अलग अलग टीम चलाई है, जो विकास कार्य करे, उसके बाद जनता के अंदर को भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसके आधार पर इस बात को कहा गया है। आप अगर मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लेंगे तो वहाँ पे आजकल कहा जाता है कि 3 तरीके के लोग भाजपा में, एक शिवराज गुट के हैं, एक महाराज गुट के हैं और एक नाराज गुट के हैं। तो महाराज से भी, मध्य प्रदेश में भी इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। जो उन्होंने 20 साल में किस तरीके से सत्ता को छीना था 2020 में, तो 20 साल में क्या कार्य किया है, किस तरीके से देखा कि अशोक गहलोत जी किस तरीके से कार्य कर रहे थे, कमलनाथ जी ने किस तरीके से 18 महीने काम किया था, उससे डर घबरा करके अब ये लाडली बहन स्कीम लेकर के आए। अब तैयार भी हो गए कि 450 में हम सिलेंडर देने को तैयार है, सब्सिडी देने को तैयार हो गए। तो ये मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि इन्हीं के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके सर्वोच्च नेता, वो 1100 रुपए तक सिलेंडर लेके गए थे। अगर वो सिलेंडर को 1100 रुपए तक ना लेके गया होते तो माननीय शिवराज जी को माइक लेकर जगह जगह पर नुक्कड़ सभाओं में एक मार्केटिंग वाले व्यक्ति की तरह चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना पड़ता कि मेरी बहनों में ये इतना कर रहा हूँ, ये ना बोलना पड़ता कि चलो मैं 200 रुपए इस बार दे रहा हूँ, मिठाई रक्षाबंधन में खाने। ऐसी छोटी बात है मुख्यमंत्री के पद से रहते हुए ना करनी पड़ती। तेलंगाना का उदाहरण ले लिया मुस्कान जी, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की अपनी पूरी स्टेट यूनिट को छोड़ दिया है। कोई नेता वहाँ पर रैली नाम लेने को तैयार, इनको लग ही नहीं रहा कि दिसंबर में तेलंगाना भी हमारा, दक्षिण भारत जो है तेलंगाना वो हमारा भाग है, इसको मानने को तैयार है कि वहाँ पे यूनिट भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई दमखम नहीं है। और आप भाजपा की हालत इस तरीके से समझ सकती हैं कि इतने कमजोर होते जा रहे हैं ये कि उन्होंने कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा था और क्या हासिल हुआ था। आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर जो इनकी पत्रिका आती है, इसमें साफ साफ लिखा था कि अब हिंदुत्व के नाम पे और नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीतना संभव नहीं है। उसके बावजूद ना राजस्थान में इनके पास कह रहा है, न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में एक सीट ला करके एमएनएस के साथ किसी तरह सरकार में टिके हुए हैं, न तेलंगाना में। तो प्रधानमंत्री के चेहरे में फिर लड़ने जा रहे हैं और हिमाचल और कर्नाटक में क्या हुआ है ये सबके सामने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5 सीटों में हम बड़ी आसानी से और बड़ी जनता के मुद्दों को उठा करके, जनता के जो मुद्दे उनको रख करके हम लड़ने वाले। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कि संसद में आकर के आप मर्यादित भाषा करके मुद्दों से भटके। वही उन्होंने कहा कि
सिर्फ हमने कर्नाटक में अपना नैरेटिव रखा। नैरेटिव मतलब हमने जो मुद्दे रखे थे, जनता से जुड़े मुद्दे थे, जनता ने उसी आधार पे हमको प्रचंड बहुमत दिया। वही हिमाचल में हुआ उसी आधार से, उसी जहाँ पे हम छत्तीसगढ़ में है और राजस्थान में सरकार है, हमने जो उदाहरण दिया है, अब उन्हीं मुद्दों के साथ, उन्हीं विकास के कार्यों के साथ, उन्हीं स्कीम के साथ बढ़ने जा रहे हैं। तो यही हमारे कॉन्फिडेंस की वजह है और जनता का जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी इसी आधार पर ये बात हुई। अमित तिवारी जी, राहुल गांधी कहते नजर आए राजस्थान के बारे में, वो तो आपने सुना ही, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक से हमने बहुत कुछ सीखा है। कर्नाटक में बीजेपी ने सिर्फ लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम किया और यही सीखकर हमने लोगों को मुद्दे बताए और मुद्दों पर बात की, इसी वजह से कर्नाटक जीत पाई है कांग्रेस। ये राहुल गांधी का बयान है, आपकी प्रतिक्रिया? मुस्कान जी, देखिए, राहुल गांधी जी नैरेटिव की बात कर रहे थे कि वो नैरेटिव चेंज कंट्रोल कर रहे हैं आजकल। तो देखिए, सोरोस क्या चाहता है? सोरोस यही तो चाहता है कि नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए। चाइना क्या चाहता है? पाकिस्तान क्या चाहता है? सभी तो यही चाहते हैं कि इंडिया के नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए। न्यूज क्लिक के माध्यम से जो इतनी बड़ी खबर आपने दिखाई थी, न्यूज क्लिक के माध्यम से जो फंडिंग की जा रही थी और जो प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा था, वो किस लिए फैलाया जा रहा था? ताकि इंडिया के नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए। कोरोना के समय में देखिए, इतनी बड़ी महामारी थी, देश इंडिजिनस वैक्सीन बना रहा था और सक्सेसफुल हुआ, पर ये किसके बिहाफ में नैरेटिव बना रहे थे? विदेशी कंपनियों के नाम पे एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अच्छे हैं और हम में ये मतलब साधन ही नहीं है कि हम अपनी वैक्सीन बना सकें। तीसरी बात, G20 के समय में इन्होंने कौन सी नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश की? G20 के समय में भी इन्होंने एक 30 सेकंड का झूठा वीडियो जारी करके वहां भी एक नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश की कि G20 फ्लॉप है। तो ये शुरू से अंत तक नैरेटिव ही कंट्रोल कर रहे हैं। किस तरीके से पत्रकारों को बॉयकॉट करना, इसका क्या आपको क्या लगता है कि ये क्यों पत्रकारों को बॉयकॉट किया जा रहा है? नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए। तो राहुल गांधी जी कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, वो नैरेटिव को कंट्रोल करने की जी जान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब उससे हो नहीं पाएगा क्योंकि ये अब उनकी बस की नहीं है। ये अब 140 करोड़ जनता के हाथों में चली गई है। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। आज इंडी अलायंस में जो गठबंधन है ये पूरा का पूरा, इनकी एक व्यवस्था है कि वो कांग्रेस के दिशा निर्देश पर ही चलेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वही बेंगलोर में ये कहते हैं कि वी नीड ममता बनर्जी टू सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये विरोधाभास इनके अंतर में, इनके अंदर ही है। आप देखिए, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार जाती है और वहां कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करती है। इन्होंने पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर के मुद्दा बनाकर जीता है, और यहां पे कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ आके मिल जाते हैं केंद्र में। दूसरी बात, आप अगर यूपी का सिनारियो देखें तो बीएसपी और एसपी का साथ हमने देखा, उसके बाद हमने एसपी और कांग्रेस का साथ देखा, उसके बाद हमने एसपी और आरएलडी और सुभाषपा इन सब का एक गठबंधन देखा। इन तीनों गठबंधनों के फॉर्म में एक कॉमन बात आपको पता है मुस्कान जी क्या थी? कि ये तीनों साथ तो आए, पार्टियां साथ आई, लेकिन अपने वोटर्स को ट्रांसफर नहीं कर पाई। और इसी मुद्दे पे मायावती का भी विरोध था कि, और वो गुस्सा हो गई थी इलेक्शंस के बाद। यही कमोवेश हाल रहा जब आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ था, और जिस हिसाब से इलेक्शंस के बाद उनके बीच में एक तल्खी आई थी। चौथी बात देखिए, मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी के राज्य में, दिग्विजय सिंह जी के राज्य में जो राज्य बीमारू राज्य कहा जाता था, जो जनपद बीमारू राज्य के नाम से मशहूर था, वो आज शिवराज जी के राज्य में 20% का ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन कर रहा है देश में। ये सोचने वाली बात है, ये आंकड़े महज आंकड़े नहीं है, इसके पीछे कठोर समय का पल पल लगाया गया है, शरीर का कण कण प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया, तब जाकर ये आंकड़े हासिल होते हैं। तीसरी बात देखिए, बिहार में किस तरीके से जो नीतीश बाबू हैं वो हमारे साथ इलेक्शन लड़के आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर जनता ने विश्वास जताया था और वहां पे सरकार बनी थी। अब वो अलग हो गए हैं और उन्होंने दूसरा गठबंधन बना लिया, तो उसका परिणाम भी आपको दिख जाएगा बिहार में और आने वाले इलेक्शंस में। मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन विपक्ष का एक बेस लाइन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये किसके विरुद्ध खड़े रहते हैं? ये देश के संस्थाओं पर हमला करते हैं, ये देश की सेना को अपशब्द कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को रोजाना पानी पी कर कोसने का और गालियां देने का काम करते हैं, देश के पत्रकारों पर हमला करते हैं और देश के धर्म पर हमला करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ ये खड़े किसके साथ होते हैं? आतंकवादियों के मरने पे इनको रोना आता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ही खड़े पाए जाते हैं, देश के संप्रभुता पर हमला करते हैं और कहते हैं कि 370 को वापस बहाल करना चाहिए। देश की आत्मा और चेतना प्रभु श्री राम के विरुद्ध खड़े रहते हैं, उन साधुओं पे हमला करवाते हैं और जगह जगह पर समय समय पर उसका श्रेय भी लिया जाता है। तो हिंदू विरोध करना इनका एक बेस लाइन है सभी पार्टियों का। इनके गठबंधन के नेता ने कह दिया है कि हमारा जो गठबंधन हुआ है वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है, लेकिन आज भी वो उस गठबंधन में उन साथियों के साथ अपने बने हुए हैं। तो ये स्पष्ट है कि इनका विचार क्या है और नैरेटिव किधर कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सुशील कुमार जी, दोनों प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी और राहुल गांधी का बयान तो आपने सुन ही लिया है। आपकी प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आए हैं कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल वो जीत ही रहे हैं। राजस्थान में उन्होंने क्लोज फाइट का जिक्र किया है। मुस्कान जी, बहुत अच्छा कहा आपने। इस समय में आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो खुलकर खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर जाकर खेल रहे हैं, क्रिकेट की भाषा में अगर इसको कहें। लेकिन राजनीति एक ऐसा विषय है जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखाया जाता है वो करने की मंशा नहीं होती। एक किसी शायर ने कहा है, हर शख्स की जवां पर है तेरी यही कहानी, समंदर दिखाया मीठा, पिला दिया खारा पानी। तो राहुल जी का 2 महीने पहले, 3 महीने पहले की आप हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाएं, राहुल जी बेघर हो गए थे, पार्लियामेंट की सीट उनकी चली गई थी। और वो तब चली गई थी जब सीनियर कांग्रेसी जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर हैं, जिनकी की एक आवाज पर अदालतें रातों रात बैठती हैं, रातों रात 11 बजे, 2 बजे, सवेरे 4 बजे सुनवाइयां होती हैं, ऐसा जनता में प्रेजम्पशन है। इतने बड़े बड़े लॉयर होने के बावजूद राहुल गांधी जी को एक जिला अदालत में कांग्रेसी सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए और जिला अदालत के आदेश पर उनकी सदस्यता चली गई। तो एक थ्योरी बाजार में यह भी है कि सीनियर कांग्रेसी लोग नहीं चाहते कि राहुल जी कांग्रेस में रहें, क्योंकि ये तो बात तय है कि राहुल जी का एक अलग तरह का आत्मविश्वास है, एक अलग तरह की उनकी विचारधारा है, एक अलग तरह की ही कार्यप्रणाली है, जो कि किसी भी तरीके से एक राजनीतिज्ञ की और खासकर मंझे हुए राजनीतिज्ञ के जैसे नहीं दिखाई देती है। वो एक तरह के महाराज हैं, युवराज हैं, उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग है। तो एक थ्योरी बाजार में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके सहयोग से राहुल जी को दोबारा सत्ता दिलवाई गई, ताकि राहुल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेलते रहें और सेल्फ गोल करते रहें, जैसा कि वो अतीत में कई बार से करते चले आए हैं। ये प्रूवन फैक्ट है जब आप चीजों को, कड़ियों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एज ए राजनीतिक विश्लेषक मैं बड़ा दुविधा में हूं कि कौन सी थ्योरी ज्यादा सटीक बैठती है। हालांकि बाद वाली थ्योरी भी सटीक है कि लोग ये कहते हैं कि वो सेल्फ गोल कर देते हैं और उसका फायदा बीजेपी को होता है, सो ही बिकम्स पार्ट ऑफ बी टीम। और पहली वाली थ्योरी भी सही है, जो हमने सबने देखा है कि इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज होने के बावजूद जिला अदालत में वो सही अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उनका मकान भी चला गया, उनकी सदस्यता भी चली गई। तो अब यहाँ ये बात भी सही है कि राहुल जी इस समय जोश से ओतप्रोत हैं और जोश और खरोश से भरे हुए हैं, क्योंकि भारत यात्रा का कुछ तो सकारात्मक परिणाम जरूर निकला है कि जो टूटते हुए कार्यकर्ता थे वो जुड़े रह गए। और चाहे ये संयोग कहें, महज संयोग कहें, या भारतीय जनता पार्टी की कैलकुलेशन में गड़बड़, या आम आदमी पार्टी की उपस्थिति की, जिसकी वजह से हिमाचल कांग्रेस ने जीत लिया और कर्नाटक में शायद जय बजरंगबली का प्रयोग हमारा भारतीय जनता पार्टी का उतना सटीक साबित नहीं हुआ, जिसके के लिए ऑर्गेनाइजर में संघ का जो मुखपत्र है, उन्होंने कहा भी है कि राम मंदिर का मुद्दा अलोन नहीं है, अकेला ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे आप पूरे देश का वोट ले सकें। इसके लिए आपको और भी विकास के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको जनता तक लेकर जाना पड़ेगा, और एक सेकंड लाइन ऑफ कमांड भी आपको तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2029 के बाद रिटायर होने वाले हैं और भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है। और अगर और पूरी अगली सदी में भी भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाए रखना है, तो हमें निश्चित रूप से एक मजे हुए नेताओं की, अनुभवी नेताओं की कतार चाहिए। उसके लिए ऑर्गेनाइजर में कहा, जिसको कि सिंह साहब ने शायद किसी
अलग तरीके से नरेट किया। तो यहाँ मामला बड़ा क्रिटिकल है और सभी पक्षों को संतुलित करते हुए हमें ये देखना होगा कि किसकी क्या क्षमताएं हैं और किसकी क्या कमजोरियां हैं, तभी कुछ कहा जा सकता है कि अगले ठीक है। इलेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, कार्तिकेय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात रखें। हाँ देखिए, मैं राजनीतिक स्थिति की बात तो करूंगा कि पहले तो उन्होंने न्यायालय के ऊपर अच्छे से खड़ा कर दिया और जब वकालत कर रहा होता है व्यक्ति, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का चाहे कांग्रेस का, जब न्यायालय के समक्ष खड़ा होता है तो मात्र वो वकील होता है, किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहेगा। तो इस बात के बारे में आपको ज्ञान होगा, काफी सीनियर, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। न्यायालय तीन स्तर पर है, चाहे वो जिला न्यायालय है, मैं आ रही हूँ सुशील जी आपके पास। हुआ सबके सामने, हाईकोर्ट में कैसे कार्य हुआ वो सबके सामने, सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्य हुआ इसके बारे में सबके सामने। तो न्यायालय को ऐसा परिस्थिति नहीं खड़ा करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का आदेश आएगा, चीफ जस्टिस के बाद में जो जजेस बैठे उस चीज का इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में सीधे सीधे आरोप लगा रहे राजनीतिक विश्लेषक की बात पता चलता है, ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की न्यायालय में चल रही है, भारत के न्यायालय पर लोकतंत्र को वैसा ही बचा था, जो बचा मुझे न्यायालय में विश्वास है। राजनीतिक विश्लेषक की बात पता चल रही है, न्यायालय जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी को ली वो डिसीजन लेना है। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी कर रहे हैं न्यायालय का क्या वक्तव्य है, आप ही वो बोला उसी बात को मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप उसी चर्चा में रहे तो मुझे इतनी बातें नहीं बोलनी पड़ती। आप जो न्यायालय प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप जिला न्यायालय तो न्यायालय करके आ गए। ठीक है कार्तिकेय जी, एक बार फिर से आ रही हूँ, इन्हीं बातों में छोटा सा जवाब देना चाह रहे हैं सुशील जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से, एक बार उनका जवाब दे लीजिए। आपको ये भी तथ्य बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की जहाँ सदस्यता का सवाल था, बहुत बड़ा सवाल होता है, वहां पर किसी सीनियर कांग्रेसी लीडर ने, जो कि बड़े बड़े वकील हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया। लेकिन वहीं पर जहां पवन खेड़ा जी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, तो आपको अगर ध्यान हो तो 2 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर ले आए थे। तो ये क्या जताता है कि पवन खेड़ा को FIR के मामले में बचा लिया गया, लेकिन राहुल गांधी जी को जहां सदस्यता चली गई, इतना बड़ा मामला था, उस मामले में इग्नोर किया गया। तो कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस के अंदर साजिश हो रही है राहुल जी के खिलाफ, या जो थ्योरी बाजार में है वो सही प्रतीत हो रही है कि कांग्रेस के सीनियर नेता नहीं चाहते कि राहुल जी कांग्रेस में रहे और बीजेपी के लिए सेल्फ गोल करते रहे। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं कार्तिकेय जी। बड़ा नाजुक मसला है, इसको आपको सोच समझकर असेसमेंट करना चाहिए। मुस्कान जी बाजारों क्या है, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। ये बात अगर आप पूरी अगर इसकी चर्चा पे आ जाता हूँ, जब जिस बात की टिप्पणी करी गई, जिससे मानहानि का दावा किया गया था, उससे स्टे लिया जाता है। स्टे का परिणाम को रोक के रखा जाता है कि फरवरी मार्च तक स्टे ले लिया जाता है। फरवरी मार्च में एकदम से ऊपर से आदेश आया होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है मोदी जी आदरणीय, तुरंत इस पे आकर के वो स्टे हटवाते केस चालू होता है। जिला सत्र न्यायालय में, जो कि सबको पता है कि भाई ये बात किस कंटेक्स्ट में कही गई है और उसको कैसे लिया जा रहा है, तो जो उसका जिला स्तर के वकील थे उन्होंने जाकर के उस बात को किया। उसके बाद वहां पर 2 साल की सजा सुनाई गई। 2 साल की सजा सुनाने के बाद जो प्रावधान है MP-MLA के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में, उसके तहत 2 साल की सजा, 2 साल की सजा उससे ज्यादा होती है तो आपका जो किसी बात सदस्यता चली जाती है, उसके खिलाफ हमने हम आगे हायर कोर्ट में गया, हायर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। उसके बाद वो प्रोसेस फॉलो होते थे, सुप्रीम कोर्ट तक आया है। तो जितने बड़े लॉयर भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंह भी, वो सामने से आए, उसका रिजल्ट सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को जिसका विश्वास है, जिनको लग रहा था कि ऐसा बोल दिया है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। ठीक है, तो सवाल हो गया, अब उनको सामना नहीं हो रहा है कि मैं आ रही हूँ सुशील जी, सुशील जी तिवारी जी, आप सभी के पास एक बार फिर से लौटूंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कार्तिकेय जी अपनी बात पूरी करिए। एक तो ये न्यायालय वाली बात, फिर राजनीतिक विश्लेषक जी ने एक बात और कही कि उनकी छवि राजकुमार और राजाओं वाली है। वो राजकुमार और राजाओं वाली छवि है, वो पुलियों के पास जाता है, वो स्कूल कॉलेज के बच्चों की परेशानियां सुन रहा है, वो मोटर मैकेनिक वालों की बात सुन रहा है। तो मुझे तो यह राजा नहीं पता भाई ऐसा कौन है। वो राजा जो अपने राजनीतिक करियर से लेकर के अभी तक अपने हजारों लाखों हम जैसे युवाओं को राजनीति में लाकर सामने से जोड़ा है, वो जिसको ये राजा बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को आपने अगर आपके 20 साल के जो राजनीतिक उनका करियर है, आप राहुल जी का देखेंगे तो वही 2-3 कपड़ों में दिखाई देगी। उस व्यक्ति का खुद का मकान है, ना भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद भी 9.5 साल तक उनकी संपत्ति के बारे में बताते हैं कि संपत्ति ये उस पर आज तक एक खुलासा, एक प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक समेत
तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होंगे उनकी तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मुस्कान जैसे कुछ दिन पहले एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, कहाँ से कहाँ लेके ठीक है। तो आप राजनीतिक विश्लेषक होते हुए भाजपा के जो समर्थक होते हैं, ठीक है कार्तिकेय जी, जो टिप्पणी कर दिए तो वो करने से बचा करिए। उस व्यक्ति की जिसको आप राजा राजकुमार बोलते हैं, उनके इतिहास में उनके परिवार से दो तीन प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी संपत्ति देख लीजिएगा, और वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट को उनकी संपत्ति कितनी इसके बारे में भी चर्चा कर लीजिएगा, उनके पास कितनी जमीन इसके बारे में भी सोच लीजिएगा, और वर्तमान के पास कितनी जमीन है उससे पूछिएगा, वो व्यक्ति कितने कपड़े पहनता है, वो व्यक्ति कितने पहनता है। ठीक है कार्तिकेय जी, ठीक है। तिवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में, ठीक है तिवारी जी। मैं सिर्फ एक सवाल कार्तिकेय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। जी सुशील, 5,000 करोड़ रुपए के गबन का केस चल रहा है राहुल गांधी जी पर, और वो जमानत पर बाहर हैं, तो क्या ये गरीब आदमी होता है? ठीक है ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ठीक ये है। बता दीजिए क्या 5 एक गरीबी का अमाउंट है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी की क्या स्टैटिंग रिपोर्ट है वो बता दीजिएगा, कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं केस ठीक है। है बता दीजिएगा। मैं भी आपसे कोई भी करूंगा तो आपको इसी तरीके से हाईकोर्ट से कोर्ट के पास ही जाकर के आपको वो लेनी पड़ेगी, जमानत लेनी पड़ेगी, वो चीजें पता उसको जनता को छुपाइए। ठीक है कार्तिकेय जी, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आ रही हूँ आपके पास, तिवारी जी। देखिए मुस्कान जी, किस तरीके से कार्तिक जी ने अभी कहा कि सुशील जी ने कोर्ट की अवमानना की और क्या क्या सब बातें कह रहे थे, तो इन्होंने अभी राहुल गांधी का पक्ष लेते लेते किस तरीके से ये कह दिया कि जिला अदालतों में भाजपा जो है वो डिसीजन को कंट्रोल करती है। तो ये कोर्ट का अपमान है या नहीं, ये आप कार्तिक जी से पूछ लीजिएगा जब इनकी बारी आएगी। तो देखिए, ये कह रहे थे कि राहुल गांधी गराज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए स्कूल्स में जाना, गराज में जाना, कुली बनना, पंडित बनना, कोर्ट के ऊपर जनेऊ आ जाना, त्रिकुंड गंगा आरती करना, तो गोविंदा की एक फिल्म आई थी मुस्कान जी, अगर आपको याद होगा तो वो हर किरदार, वो उसमें अलग अलग किरदार बदलते हैं, कभी वकील बनते हैं, कभी कुली बनते हैं, कभी इंस्पेक्टर बनते हैं, शायद राजा बाबू उस फिल्म का नाम था। तो वही राजा बाबू वाली ही तो किरदार वो निभा रहे हैं। वो कभी स्कूल में टीचर बन जाते हैं, कभी वो खेतों में जाके नाइकी के जूते पहन के वो किसानों के साथ काम करने लगते हैं, कभी गराज में जब मैकेनिक के साथ बैठ जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं और वो ट्रॉली वाली जिसको बच्चा भी खींच सकता है उसे सर पे उठा लेते हैं, त्रिकुंड लगा लेते हैं, गंगा आरती करने निकलते हैं, टेम्पल रन उनका चालू हो जाता है इलेक्शन के समय। तो ये एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के भांति राजा बाबू, जो गोविंदा की जो फिल्म आई थी राजा बाबू, जिसमें गोविंदा अलग अलग कपड़े पहन के और अलग अलग किरदार, तो वही रोल राहुल गांधी आज भारतीय पॉलिटिक्स में निभा रहे हैं। अमित तिवारी जी, कार्तिकेय जी एक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कार्तिकेय जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं सुशील जी के पास जाऊंगी। देश के असली राजा बाबू कौन है वो सबको पता है, जो कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी डिफेंस एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर बाहर जाकर भूल जाते हैं कि देश की जनसंख्या कितनी है, बाहर जाकर भूल जाते हैं पहले और ड्रोन के बारे में आग जलाए, ड्रोन का डिब्बा लेके ड्रोन उड़ा देते हैं। तो असली राजा बाबू वाली किरदार से बाहर निकलिए कार्तिक जी, कम से कम आप तो देख सकते हैं, आप सही चीजें देखिए। तो भाइयों के लोग सातों किसानों की शहादत होने के बाद भी जिस पार्टी के किसी एक सिंगल आप एक व्यक्ति कार्यकर्ता की तरफ से माफी दिखी हो या श्रद्धा दिखी हो दिखा दें तो पता चल जाता है। तो असली राजा बाबू कौन है वो तो देश को पता है। रफेल के मामले पे माफी मांगी थी, अरे भाई साहब फंस गए आप। रफेल के मामले पे माफी मांगी थी, रफेल के मामले में जब मामला कोर्ट में गया था तो माफी मांगी थी राहुल गांधी ने। रफेल के मामले पे ये बड़ी बड़ी पार्टियों को दिखाई दे जाते हैं। आपको असली राजा बाबू यही राजा बाबू रफेल के मामले में न जाने उनको देखो कि राजा बाबू के मामले में न्यायालय में जब गया तो उन्होंने चलिए ठीक है, इस तो मैं से बाहर निकलते हैं। ठीक है कार्तिकेय जी, तिवारी जी एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटते हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं चुनावों की।
सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान में जिस तरीके से क्लोज फाइट का जिक्र किया है, क्या इसका कारण ये समझा जाए अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो अंतर्कलह देखी जा रही है, उसको लेकर अभी तक वो अंतर्कलह सुलझने का नाम नहीं ले रखी है। पायलट अलग अलग तरीके से अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर बयानबाजी करते हैं और यात्रा तक निकाल देते हैं कांग्रेस के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ। तो क्या इन सब चीजों को लेकर ये कहा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है? जी मुस्कान जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब अतिशय आत्मविश्वास से भरपूर कोई व्यक्ति कहे कि यहाँ पर क्लोज फाइट है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम राजस्थान में तो हार गए। और ये अभी यहाँ पर हमारी चर्चा पर भी आ गई है बातचीत कि जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उनके खिलाफ रैलियां निकाले जा रही हैं, तो इसका मतलब भीतरघात बहुत जबरदस्त है। और राहुल जी ने इनडायरेक्ट रूप में ये तो मान लिया कि राजस्थान गया हाथ से, और जब राजस्थान जैसा बड़ा स्टेट अगर हाथ से गया तो वास्तव में बड़ी चिंताजनक है। अब रही बाकी जो स्टेट्स की, उसमें मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है और तेलंगाना है और जो स्टेट है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से इस समय क्लोज फाइट है, मगर वो क्लोज फाइट कितनी क्लोज है ये डिपेंड करता है INDIA के साथ किस तरह का इन लोगों का गठबंधन होता है। क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस हार रही है और आप जीत रही है, क्योंकि आप भी बड़े ही आत्मविश्वास से भरपूर है। आपने केवल और केवल कांग्रेस के वोटर्स की पीठ पर बैठकर सवारी की है, और कांग्रेस का वोटर जब इतना निराश हो जाए कि पूरा का पूरा कांग्रेस का वोटिंग चंक वहां चला जाए, तो ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है कांग्रेस के लिए। और वही जो वोटर था, 1% से वोट का जो परसेंटेज का डिफरेंस था हार का, जिसकी वजह से हिमाचल से बीजेपी वंचित रह गई और कांग्रेस आ गई, वहां पर डिसाइसिव फैक्टर रहा आपका। तो ये जो, और आपके साथ ये गठबंधन में है, तो अगर ये लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं विपक्षी दल, तो शायद बीजेपी को क्लोज फाइट हो सकता है। नहीं तो इस समय मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस जीत रही है चारों राज्यों में। हाँ, फाइट है, तगड़ी है, और ये कांग्रेस आत्मविश्वास से भरपूर है क्योंकि कर्नाटक इनको पास मिला, हिमाचल पास मिला है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, एक सदुपदेश है कि अतिशय आत्मविश्वास से भरपूर ना रहें, ग्राउंड रियलिटीज को जरूर देखें, व्यावहारिकता को जो ग्राउंड पर है वो जरूर देखें, क्योंकि इस समय G20 के बाद और चांद पर पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत ऊंचा है, और इस समय जो पाकिस्तान में होने जा रहा है या जिसके कयास लगाए जा रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान में और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ऐसा भी संभव है कि वहां पर कोई एक्शन हो और फिर बीजेपी का ग्राफ और तेजी से बढ़ जाए। तो कांग्रेस को मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि केवल मोदी विरोध पर। मोदी विरोध पर का एजेंडा क्या है? आप किसी एक आदमी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जनता कह रही है हमें क्या दोगे? बिजली, पानी, रोजगार, विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमें मिलेगा? अगर वो कुछ नहीं मिलेगा तो आपका रेटरिक गोज डाउन द ड्रेन, उसमें कुछ आपको नहीं मिलना है, वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है कार्तिकेय जी, सवाल यही है सीधा सीधा, क्योंकि बात चुनावों की कर रहे हैं, तो सुशील जी पूछ रहे हैं आपसे कि आप सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडा ही रखेंगे या फिर कोई और एजेंडा है जो आप जनता को देना चाहेंगे? क्योंकि जनता पूछ रही है कि आप मोदी जी को तो हटा देंगे, ठीक है, लेकिन जनता को क्या देंगे फिर? मुस्कान जी, सबसे पहले तो जब बार-बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी राजनीतिक विश्लेषक भी इन्हीं के समर्थक मुझे थोड़ा प्रतीत हो रहे हैं, जब वो बार बार बात करते हैं कि आपस में गुट है, तो जरा मुझे राजस्थान में गुट बताएं। वसुंधरा राजे का अपना गुट है, अगर वहां की राजनीति के बारे में जानते हो। गजेंद्र सिंह शेखावत का अपना गुट है, सतीश पूनिया का अपना गुट है, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछे इनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, बता सकते हैं? इससे पहले वसुंधरा राजे थे, क्यों उनके नाम पे दाव चलने को तैयार है आप? मध्य प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? अरे शिवराज चौहान ने बहुत अच्छा काम किया है, तो बोलिए उसके बारे में। क्यों उनके विधायक आए दिन छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? डूबता जहाज है, छोड़ना चाह रहे हैं इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। तेलंगाना में कहाँ गायब हो गए आप एकदम से? क्यों जाके वहां पे रैलियां नहीं कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी की यहाँ पे वो नहीं, आप बार बार इस चीज से इसके पीछे मत बचक। देश की जो दुर्गति है उसके बारे में बात हो रही है। अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई रिसर्च की कि बेरोजगारी दर इनके समय में कितनी चरम पे जा चुकी है, उसके बारे में आगे चर्चा कर लीजिएगा। G20 में आप कनाडा को बुलाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि बड़ा अच्छा देखे देश का विश्व गुरु बन गया है, और ट्रूडो जाके कनाडा में क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करेगा। बच के हमेशा पाकिस्तान के पीछे जाके मत छुप जाइएगा।
अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आपसे अच्छा बांग्लादेश हो गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपने आप को देखिए कहां पहुंचा दिया आपने, कुपोषण में कहां पहुंचा दिया, उसके बारे में बात करिएगा। और किसी एक रैली दिखाइएगा जहां पे प्रधानमंत्री ने महंगाई के बारे में बात करी हो, बेरोजगारी के बारे में बात करी हो, महिला सुरक्षा के बारे में बात करी हो। भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे जिसको छुपा रही थी विभूषण शरण सिंह को, दिल्ली पुलिस ने मुस्कान जी उनके बारे में क्या बोला है? उनके बारे में बोला है कि इस व्यक्ति ने कोई भी ऐसा मौका छोड़ा नहीं जहां पर उसने महिला पहलवानों का शोषण ना किया हो। अब ये चले गए, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए। तो मुद्दों से भागा नहीं। देश का प्रधानमंत्री मिजोरम पे क्यों चुप हो जाता है, देश ये जानना चाहता है। देश का प्रधानमंत्री महिला उत्पीड़न जब होता है चुप क्यों हो जाता है, ये जानना चाहता है। देश का प्रधानमंत्री खालिस्तान पे क्यों नहीं बोलता है, ये जानना चाहता है। देश का प्रधानमंत्री किस समय, अभी 4 से 5 दिन पहले, एक मिनट मुस्कान जी बात अपनी खत्म कर लूं मैं, डीएसपी बाबर जी जो शहीद हुए, मेजर शहीद हुए, हमारे कर्नल शहीद हुए, उस दिन शाम को अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहा। देश इस चीज को लेकर चिंतित है कि एक व्यक्ति आत्ममुग्ध हो चुका है, उसको असर ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हुआ है, क्या लोग हमारे शहीद हुए हैं। मुस्कान जी, मैं गारंटी से देश कह सकता है कि अगर उस समय चुनाव होता तब आप देखते प्रधानमंत्री मोदी जी को। इसलिए मैं कहा था कि देश का असली जो बता रहे थे राजा बाबू, असली राजा बाबू कौन है, एक्टिंग कौन कर रहा है, वो होता है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में 25 लाख, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में 25 लाख रुपए का इलाज अगर मुझे मुफ्त मिलता हो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल अस्पतालों में, तो बता दीजिएगा। राजस्थान पहला राज्य था जिसने प्रत्येक महिलाओं को, राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करी, उसके बारे में बात करिए, बताइएगा। 10 लाख परिवारों को वितरण की बात है, उस पर बात करिएगा। राजस्थान एकमात्र राज्य है जिसमें अगर पब्लिक सर्विस कमीशन किसी ने, ठीक है, ये मैं समझ गई, लेकिन कार्तिकेय जी सवाल ये था, मुझे लगता है आप सवाल समझ नहीं पाए। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दों पे सारी बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में हम तो हर चीज करने को तैयार है, हमने कर्नाटक में हमने करके दिखाया ना। 9.5 साल पहले केंद्र में जो सरकार थी या मध्य प्रदेश में सरकार है, वो क्या कर रही थी? व्यापम के बारे में राजनीतिक विश्लेषक क्यों नहीं बात करते हैं? मेहमान जो व्यापम के बारे में बात कर ले, मैं मान जाता हूँ न्यूट्रल है। गजेंद्र सिंह शेखावत का कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या घोटाला है, उसके बारे में बात कर ले, मैं मान जाता हूँ। रमन सिंह के सरकार के टाइम पे जो इतना बड़ा चावल के ऊपर घोटाला हुआ था, ये बात कर ले, मैं मान जाता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक है, न्यूट्रल है। तो राजनीतिक विश्लेषक रहते हुए, ठीक है, अब एक बार गिने चुने पॉइंटर्स बता दीजिए कांग्रेस के मुद्दों के। गिने चुने पॉइंटर हैं कि अगर हम बेरोजगारों को रोजगार जब तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सरकार की ड्यूटी होती है लोकतंत्र के अंदर कि उनको रोजगार भत्ता दे। महिलाओं को महंगाई से निजात दिलाने के लिए चाहे उनको गैस सिलेंडर सस्ता दें, चाहे हम उनको मासिक वेतन की शुरुआत करें, वो इसलिए करी जाती है। अर्थव्यवस्था में जब रुपए आता है, अगर अर्थव्यवस्था की समझ होगी, तभी लोगों की बाइंग कैपेसिटी, खरीदारी की समझ बढ़ती है, खरीदारी करते हैं, फ्लक्स होता है, रुपए जो होता है वो पाइपलाइन में अंदर आता है मार्केट में, तब लोगों की अपनी जो स्तर होता है जीवन का वो उठाया जाता है। उसके बारे में बात करते हैं। किसानों को जो भी लोन होता है वो माफ किया जाए, उनको एक, जैसे कि हमने तेलंगाना में कहा है कि 15,000 रुपए सालाना, ताकि वो उर्वरक अच्छे खरीद सके। एमएस 500 रुपए बोनस की बात करें, हम ये सब करते हैं। कहते हैं कि भाई महिलाओं को 100 यूनिट हम बिजली की देने की बात करते हैं, मासिक 1000 रुपए देने की बात करते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इनको 3,000 2,000 भत्ते की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी है, राजस्थान में ग्रामीण कहते हैं मुख्यमंत्री जो हॉस्पिटल वितरण जेल बना रखे हैं, अस्पतालों में इलाज मुफ्त कर रखा है। 127 के करीब ज्यादा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इंग्लिश सरकारी स्कूल है जिसमें 60,000 बच्चे का एडमिशन लिया हुआ है। ये सारी बातें जितनी मैंने बोली है वो एक भी ये साबित करते हैं। यहाँ बैठे ठीक है कार्तिक, अब भारतीय प्रवक्ता बैठे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक विश्लेषक के, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, कौन से विकास कार्य किए, उस पर चर्चा कर लेते हैं। चाहे तो केंद्र सरकार पे क्या करनी है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नहीं 5 राज्यों की बात कर रहे हैं अमित तिवारी जी, सीधे सीधे सवाल यही है आपसे, इधर उधर की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन कार्तिकेय जी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि अगर हमारी गुटबाजी है तो गुटबाजी तो राजस्थान में बीजेपी में भी है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत सारे गुट हैं। और साथ ही साथ आपके क्या मुद्दे रहेंगे राजस्थान और अन्य राज्यों के चुनावों में, वो भी जरा बता दीजिएगा। मैं मुस्कान जी सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा तिवारी जी से पहले। जी सुशील, अभी जो हमने सिंह साहब की चर्चा सुनी, तो सिंह साहब ने कोई भी प्लान ये नहीं बताया कि भविष्य में ये क्या करने जा रहे हैं, ये रेवेन्यू जनरेशन कैसे करेंगे, विकास कैसे करेंगे। इन्होंने ये बता दिया सर, आप बता दिया कि मुफ्त की रेवड़ियां कैसे बांटी जाएंगी और क्या क्या रेवड़ियां बांटी जाएंगी। आपने उस चैनल का उपयोग करके अपना कांग्रेस का घोषणा पत्र मुफ्त की रेवड़ियों का आपने बता दिया जनता को, लेकिन ये नहीं बताया कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। इसके लिए कि बार बार मोदी जी ने कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां देश को खराब कर रही हैं। कोई भी सुविधा आपको मिल रही है तो उसका आपको पे चुकाना चाहिए। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि आपको मौका मिले तो आप ये बताइएगा कि विकास के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्या क्या आपकी स्कीम है। ठीक है, मैं आऊंगी कार्तिकेय जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। एक मिनट मैं आ रही हूँ प्लीज, वरना ये अपनी बात से फिर बीच में 1 मिनट मुझे जल्दी से।
निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं। इन्होंने जब ये जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन बांट रहे थे तो कहा था कि जी हमने तो बांटा है, हमको धन्यवाद करना चाहिए, देश की जनता को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि वो राशन बांट रही है, तो धन्यवाद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि मैंने लोगों को नमक खिला दिया, तो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती है ना। 450 रुपए में जो ये शिवराज चौहान जो देने को मजबूर हो गए, वो मुफ्त की रेवड़ी तो थी नहीं। रक्षाबंधन में 200 रुपए जो लाडली बिटिया को देने का नाम था, वो तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं थी। इसलिए मैंने कहा राजनीतिक विश्लेषक भी आप राजनीतिक विश्लेषक ही रहिए, भारतीय जनता पार्टी विश्लेषक ना बनिए। चलिए ठीक है, ठीक है कार्तिक जी, ठीक है, मैं एक बार फिर से दूंगी ना समय आपको, प्लीज तिवारी जी इंतजार करें। तिवारी जी देखिए मुस्कान जी, आप जहां इनसे प्रश्न कर लेंगे ये आप पर पर्सनल अटैक करने लगेंगे और आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और न जाने क्या क्या कहने लगेंगे। देखिए ये बोल रहे थे गुट के बारे में, शायद आपने भी पूछा कि बहुत सारे गुट है। देखिए हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, मात्र एक गुट है, वो है देशभक्तों का गुट। हमारा देशभक्तों का गुट है और जो हम देश को अपने सीने में बसाए लेकर चले जा रहे हैं। देखिए पहली बात, इन्होंने कर्नाटक की बात कही, इन्होंने कर्नाटक में बहुत अच्छा काम कर दिया है। कर्नाटक में इन्होंने कहा बिजली मुफ्त देंगे। आज मैं कर्नाटक में बैठा हूं, यहाँ बिजली 50% से मुफ्त हो गई है। कल भी धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था सरकार के सामने और बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जनता इस फैसले से त्रस्त है। दूसरी बात, वहां पे जिस तरीके से झूठ गढ़ा गया 40% का, वही झूठ उनको लगा कि मध्य प्रदेश में भी चल जाएगा और उन्होंने फिर से मध्य प्रदेश में झूठ बोलने का काम किया कि यहाँ पे 50% का कमीशन लिया जाता है। ना उस व्यक्ति का पता आज तक पता चला, ना उस व्यक्ति के साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना वो घटना कोई ऐसी हुई थी और ना वो संस्था मिली। तो जब ये कुछ नहीं और उन पर FIR होने लगा तो वो वहां से भी भाग खड़े हुए। किस तरीके से आज जो कमलनाथ हैं वो करप्शन नाथ बने हुए हैं। उनके जब नजदीकी मित्रों पे छापा पड़ा तो 250 करोड़ कमलनाथ जी के नजदीकी मित्रों के यहाँ से, रिश्तेदारों के यहाँ से निकाले गए थे। ये कार्तिक जी को पता होना चाहिए। ये राजस्थान की बात कर रहे थे। देखिए राजस्थान में 500 रुपए की गैस की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी रिसर्च की टीम है, आप माइक लेकर जाइए और एक भी व्यक्ति से पूछिए जो आपको कहे कि उसको 500 रुपए का गैस मिल रहा है। ये वहां पे राशन का किट बांटते हैं, उस राशन के किट में नमक है और उस नमक में भी मिलावट है। ये इसका स्तर इतना गिर चुका है। पेट्रोल सबसे ज्यादा कहीं महंगा है तो वो राजस्थान में है। बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी कहीं सबसे ज्यादा है, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, राजस्थान में है। क्राइम रेट सबसे ज्यादा राजस्थान में ज्यादा है, आप NCRB के रिपोर्ट देख लीजिए। किस तरीके से झूठ फैलाने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता और घमंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हर चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। मैं आपको 2 आंकड़े और देता हूँ। अभी आंकड़े जारी हुए हैं नीति आयोग की तरफ से, उसमें कहा गया है कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसके बाद 5.5 करोड़ लोग EPFO के लोगों के नए EPFO अकाउंट खुले हैं। तो कार्तिक जी ये बताएं कि अचानक से 5.5 करोड़ लोग कहां से आ गए हैं। तीसरी बात, इन्होंने महंगाई की बात करी। हमारे कार्यकाल में पूरे के पूरे 9.5-10 साल के कार्यकाल में 5.5%, मुस्कान जी लाइव आप इस चीज को टेस्ट कर सकती हैं, 5.5% एवरेज महंगाई दर रही थी। कांग्रेस के काल में ये 10 से 12% रही थी। तो इनकी तो कोई हैसियत नहीं, कोई आंकड़े पेश करने की हमारे सामने। हमारे मूल्यांकन में अगर मूल्यांकन करे 9.5 सालों का तो इनके 70 सालों पे भारी पड़ेगा। ठीक है तिवारी जी, एक बार फिर से लौटूंगे आप सभी के पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कार्तिकेय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा अमित जी की बातों को, उसके बाद मैं सुशील जी के पास जाऊंगी। बस जल्दी से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने बात करी थी कर्नाटक में भ्रष्टाचार की। एक PWD का कॉन्ट्रैक्टर था, कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का, उसने ऑन कैमरा फांसी लगाने से पहले अपने आप को बोला कि जो ईश्वरप्पा है उन्होंने मुझसे घूस ली थी। उसके बाद अत्यधिक मीडिया का कर्नाटक के लोगों का दबाव बना, 40% कमीशन की बात करी थी। वहीं से कर्नाटक की जनता ने इनका 40% कमीशन वाली सरकार नाम रखी। वहीं से PCM चला और जिसको पूरी कर्नाटक की जनता ने हाथों हाथ लिया और एक्सेप्ट किया था। उसी ईश्वरप्पा को इन्होंने टिकट भी नहीं दिया, इनको मंत्री पद से बर्खास्त करना पड़ा। उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, किसी तरह सत्ता प्राप्ति कर लो, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, झूठ बोल के, उसी तहत प्रधानमंत्री ने ईश्वरप्पा जी को फोन किया, उनका धन्यवाद किया कि चलिए आप पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भ्रष्टाचार है। जब आप
जिस व्यक्ति को कहते हैं चक्की पीसिंग एनसीपी के, उनको अजीत पवार को लाकर अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। 2 दिन पहले 17,000 करोड़ का घोटाला, महाघोटाला, उन्होंने जैसे इंडिया गठबंधन के बारे में बोला कि देश के नाम के आगे इसकी किस तरीके की चीजें लगा सकते हैं, ये किस तरीके से कुंठा से ग्रसित लोग हैं, ये दिखाता है। उसके भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करते। अब उनको क्या है, हेमंत नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, इन सबको रहने दीजिए, तो ये सब तो सीधे उदाहरण है। तो ये जनता के सामने जो भ्रष्टाचार बोलते, जनता भी हंस देती है। कल को इनके में शामिल होंगे तो कहा जाता है, इनके लिए चलता है, बड़ा मीम वायरल होता है कि वॉशिंग मशीन है, तुरंत उसको गले लगा लेंगे। तो भ्रष्टाचार में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में भ्रष्टाचार के क्या मुकाबले क्या है, क्या ईडी सीबीआई ने क्या कार्य किया, उसके बारे में साबित कर देते 5 साल में। जो व्यक्ति लगातार विकास कार्य कर रहा है, अपने कार्य गिना रहा है, उसके बारे में आज तक मोमेंटम ही नहीं बनाएंगे। लेकिन सचिन पायलट ने भी तो ये बात कही थी ना राजस्थान में, कार्तिकेय जी, कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई अशोक गहलोत द्वारा। कार्रवाई होगी, गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में उन्होंने बोला था। हमारे इसमें तो पार्टी में सबको खुली छूट है, सब सामने से बोल सकते हैं जहाँ पे कार्रवाई है, लगता है कि उस तरीके से कार्रवाई नहीं है भ्रष्टाचारी के ऊपर। इसी तरीके गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर खुली छूट है, तो फिर राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त क्यों किया सदन में बोलने पर? वो तो भारतीय जनता पार्टी बताया कि राजेंद्र गुड़ा का तो इतिहास रहा है, वो बताया कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से किस तरीके से बोल रही है। वो तो आप इससे पहले जब बसपा में तब क्या बोलते थे, ये भी देख लीजिएगा। वो तो इनके में शामिल होने वाले, किसी से छुपा हुआ थोड़ी ना है, किसी से छुपा थोड़ी ना है। जो लाल फाइल लेकर के आ रहे थे राजेंद्र गुड़ा, उनसे पूछते क्यों नहीं, सीबीआई के पास क्यों नहीं चले गए? आर्य तिवारी जी, आर्य सुशील जी, उनसे ली जाती, इंक्वायरी कमेटी बिठाते, उसके बारे में क्यों चुप हो जाते हैं? तो राजेंद्र गुड़ा जो फाइल लेके चल रहे थे, वो फाइल कहाँ चली गई? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आ गई, दफ्तर में आई है, उन पे बात है, तो उनके पास तो सारा सब कुछ है इनके पास भाई। ठीक है कार्तिकेय जी, भेज देते हैं ना, उससे क्यों डर रहे हैं? ठीक है। इस तरीके से काम कर रही है, तो सबको पता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये इनका समर्थन करने वाले हैं। पूछ लीजिए अगर गलत बोल रहा हूँ मैं, ये ना करे तो आप मुझे दिसंबर में बताइए वो टिकट नहीं मिलेगा तो। ठीक है, ठीक है, आपके पास ठीक है कार्तिकेय जी, आगे बढ़ते हैं प्लीज, समय भी समाप्त है। ठीक है सुशील जी, अभी एक छोटा सा सवाल है जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप ही के पास आ रही हूँ। सिंह गुड़ा जी को इन्होंने बीजेपी का आदमी बना दिया। हाँ। आपने अपनी सरकार में बीजेपी का आदमी उस समय तक रखा जब तक उसने सच नहीं बोला, और अब जैसे ही सच बोला उनकी नौकरी ले ली कि मणिपुर से ज्यादा बुरी हालत महिलाओं की राजस्थान में है, शाम तक 3 घंटे में नौकरी चली गई, और अब वो बीजेपी के एजेंट हो गए। जब तक वो कमा कर दे रहे थे वो आपके मंत्री थे, और अब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी से पूछिए, तो ये बड़ा हास्यास्पद है। और इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं चोरी और सीनाजोरी। चोरी पकड़ी गई तो ये विपक्षी का आदमी है, जब तक वो चोरी कर रहा है, धन कमा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, या जो भी कर रहा है, वो आपका अपना आदमी है जब तक पैसे कमा कर दे रहा है। तो ये जो दोहरा मानदंड है ना, दोहरा चरित्र है, ये जनता जो ऑडियंस है जो आपको सुन रही है, उसको भी आप बता सकते हैं कि भाई जब तक ये हमारा था तो हमने वो अपना आदमी मानते थे, जैसे ही इसने सच बोलना शुरू किया हमने बीजेपी का कहकर इसको विरोधी बनाकर बाहर फेंक दिया। तो जनता देखती है। तो मेरा ये आपसे नम्र निवेदन है सभी प्रवक्ताओं से, सभी पार्टियों से, जो भी हम यहाँ बोलना चाहते हैं वो सोच समझकर बोलें, पहले तोलें फिर बोलें। पार्टी की वफादारी सिद्ध करने के चक्कर में हम सफेद झूठ ना बोलें, तथ्यों को गुमराह ना करें, जनता को गुमराह ना करें, क्योंकि जनता सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ जानती है, और उसके पास आपका पुराना बयान भी है और उसके पास सत्य भी है। ठीक है, मैं आऊंगी कार्तिकेय जी आपके पास। उससे पहले सुशील जी आप से सवाल है मेरा, क्योंकि कर्नाटक का हम जिक्र कर रहे थे, कर्नाटक में येदियुरप्पा को साइडलाइन करना पार्टी के लिए काफी घातक हुआ है, ये हम देख रहे हैं जिस तरीके से चुनावों में नतीजे सामने आए। अब बीजेपी चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे को भी कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। कई बार देखा गया है कि उनके रैलियों में बड़े नेता पहुंचते नहीं हैं, तो क्या राजस्थान में भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है? देखिए, बीजेपी को या कोई भी पार्टी हो, अगर लोकल कोई सीनियर कद्दावर नेता है उसको इग्नोर करना निश्चित रूप से उस पार्टी के लिए घातक होता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में मेरे हिसाब से 2-3 मसले थे कि लोकल नेताओं को थोड़ा सा इग्नोर किया गया, बजरंगबली के ऊपर जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया, भ्रष्टाचार जो 40% आज सिंह साहब बता रहे हैं कि 40% का मामला वो इन्होंने इश्यू बनाने में ये सक्सेसफुल रहे, और लोकल मुद्दों को हाईलाइट नहीं कर पाए। जबकि इन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसा जनता तक पहुंचता है। तो 85 पैसे के जो भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, उसने 40 पैसे के भ्रष्टाचार को
और एक ही नेता को उन्होंने ऑफिशियली हर प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि जितना भी पैसा यहां से जाता है उसका 85% बढ़ जाता है, और यहां पर एक ही जो करप्ट नेता था उसका 40% की बात थी। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ढंग से हैंडल नहीं कर पाई, और वही जैसा कि अभी आपने बताया कि श्रीमती सिंधिया को जो वहां पर इग्नोर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ग्रास रूट की नेता रही हैं, मतलब वैसे तो वो महारानी के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव ग्रास रूट तक काफी गहरा है, और इस तरह के सीनियर नेताओं को, लोकल नेताओं को इग्नोर करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है पार्टी को। तो इस बात के बारे में भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना ही चाहिए। ठीक है, अमित तिवारी जी। मुस्कान जी, देखिए कार्तिकेय जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने क्राइम रेट पर, राजस्थान के क्राइम रेट पर कुछ नहीं कहा। किस तरीके से आपने अजमेर 72 नाम की एक मूवी देखी होगी, और वो घटना सही घटना है, और उसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता की उसमें संलिप्तता आपने देखी होगी। किस तरीके से हमने देखा है कन्हैया लाल की वहां पे गला काटकर हत्या हो जाती है। राजस्थान की महिला मंत्री ये कहती हैं कि पुलिस स्टेशन में हमारी सुनी नहीं जाती। राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहां पर रेप होते रहते हैं। तीसरी बात, राजस्थान की जब भी बात होगी तो लाल डायरी का जिक्र जरूर होगा। क्या कारण है जो लाल डायरी की वजह से गहलोत सरकार डर गई और उनको घसीट के लोग उस संसद से घसीट कर पीटा गया? क्या कारण है जो उनको बोलने से रोका गया? वो क्या मुद्दा उठा रहे थे? वो महिलाओं का मुद्दा उठा रहे थे। आज हमने बिल पास किया है, नारी शक्ति वंदन बिल। आप बताइए मुस्कान जी, नारी शक्ति की वंदना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नारी शक्ति को सम्मानित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नारी शक्ति को उसकी भागीदारी आज 2023 में उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन चलिए तिवारी साहब, समय समाप्त चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं और समय नहीं दे पाऊंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आज सामने आया और कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का जो देखने को मिला है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप बीजेपी से पूछ लीजिए, वो भी इस बात को नकारेंगे नहीं। तो ऐसे में यह देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।